And now we go to the other book, Bentino Massaro, Super Accelerated Living. एंड उसमें आज वो हमको एक मेथड पढ़ा रहे हैं, है ना। मुझे वो वाला सेंटेंस इतना एज्ड है ना मेरे दिमाग में बेंटिनो मैसारो का, जिसमें उन्होंने बोला था कि बी एक्साइटेड अबाउट व्हाट यू वांट, योर प्रेफरेंस, बी एक्साइटेड अबाउट योर प्रेफरेंस, you know, be all into that, think it, live it, eat it, smell it, taste it. He said that sense it, put all your senses into your preferred reality. आपकी preferred reality क्या है ना, आप उसको कैसे अचीव करना है, और पैरेलल रियलिटी से उसको हकीकत में अगर लाना है तो क्या करना चाहिए, वो हमको एक मूवी फ्रेम एनालॉजी बोल रहे हैं, है ना। मूवी फ्रेम बिकॉज हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी। Morning. वेरी गुड मॉर्निंग। यस, प्लीज स्टार्ट रीडिंग द मूवी फ्रेम्स एनालॉजी। The movie frames you change word every nanosecond. One way to imagine this is to use analogy. You know that a movie consists of frames of image, and each frame is its own complete 100% reality. One frame has no structural relationship whatsoever to the next frame. Even though they look very much alike, you could cut the reel of film, take one frame to China and put another one in a rocket and send it to the moon. The two frames have no relationship to each other whatsoever, even though they look so similar. For example, the one thing that has changed from one frame to the next might be movement of a hand. In one frame, the actor's hand is here. In the next frame, his hand has moved slightly to the left. From a visual point of view, this is the only difference between the two images. However, from the point of view of the frame itself, all it knows is that it is its own complete reality, and mole- that its molecules have no relationship to the molecules of the previous frame. It's up to the observer to create the sense of linearity or time based on this image, and then the next and the next. You, as the observer of this image, can say these are this is a previous and a next image. You can say first hand was over here and then it moved slightly left. But from the perspectives from the perspective of the hand, nothing ever changed because there is only one hand in that particular reality or frame. The hand is slightly moved to the left is 100% complete different reality that has no notion whatsoever of the other reality. If you were to slow down a movie or motion picture, a picture in motion, and that's what life is too. You could freeze a segment. What would that look like? What would one complete reality look like if you did not automatically shift into a new reality? It would look like everything was absolutely frozen. Hypothetically, you could keep your consciousness in one such frame. You could pause the process so that all you are aware of is one timeless total configuration of the universal energy. लेट अस टेक अ पॉज हियर एंड अंडरस्टैंड कि बेंटिनो मैसारो यहाँ पे हमको क्या समझा रहे हैं।
तो वो ये बोल रहे हैं कि जैसे ना एक पिक्चर की रील हुआ करती थी, पहले हम पूरी मूवी रील बोलते थे, है ना, जो हम फीचर फिल्म भी हॉल में जाके देखते हैं, उसकी एक नेगेटिव की रील होती है, वो पूरी एक से दूसरी दूसरी बंदी है, तो वो कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स होता है जिससे हम वो मूवमेंट देख रहे होते हैं, है ना। हमको तो स्क्रीन पे क्या नजर आया, दैट एक हॉर्स इज जस्ट मूविंग फ्रॉम प्लेस ए टू बी। हमने यही देखा कि जो हॉर्स है वो हमको एक लार्ज स्क्रीन पे, जितने भी का होता है, एक स्क्रीन के राइट साइड से वो दूसरी राइट पे दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर एक राइडर बैठा हुआ है ना, जो भी राइड कर रहा है उस हॉर्स को, वी सी दैट हॉर्स मूविंग। बट एक्चुअली वो क्लस्टर ऑफ इमेजेस हैं जो मूवमेंट कर रही हैं, जब उनको फटाफट 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 मूव करते हैं तो वो हॉर्स हमको मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोगों ने कभी वो रील देखी होगी पुराने जमाने में, जितने भी यहाँ पे लोग जो 35 ईयर्स के ऊपर हैं उनको पता होगा दैट कैमरे की एक रील डला करती थी। पहले हमको फोटो खींचना होता था तो कैमरे में एक रील डालते थे, वो रील डेवलपमेंट के लिए फिर हम देते थे फोटो स्टूडियो में, और वहां से वो रील की हार्ड कॉपी बन के हमारे पास आती थी, है ना। तब वो जमाना नहीं था कि अपना सेलफोन होते नहीं थे, तो सेलफोन से आप कैमरे से फोटो ऐसे नहीं खींच सकते थे। हमको एक्चुअली अलग फोटो खींचने के लिए कैमरा खरीदना पड़ता था, और उसमें एक 24 की और एक 36 की रील डलती थी, 24 और 36, इतनी ही फोटो आ सकती थी उससे, है ना। फिर उसकी एक रील पूरी बाहर आती थी, कट 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 कट, और वो स्टेशनरी। तो सिमिलरली जो फीचर्स होते हैं, जो फीचर फिल्म होती है, उसकी भी छोटी 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 मूवी फ्रेम्स होते हैं, है ना। अगर उनको फटाफट चलाओ तो वो हिलती भी नजर आएंगी। तो बेंटिनो मसारो कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी भी वैसी है। आपकी जिंदगी वो जो मेंटल पिक्चर है उसमें कुछ कुछ फ्रेम्स ऐसे हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो कह रहे हैं उनको चाइना भेज दो। बस, ही सो फनी। सो कह रहे हो उनको, सो यूनिवर्स में भेज दो, उनको बोलो वो रॉकेट है, वो चले गए, वो नहीं चाहिए हमको अपनी पिक्चर में, ऑब्सोलीट है वो हमारे लिए, राइट। एंड देन ही सेइंग दैट आपको क्या चाहिए, आप उस इमेज पे अपने आप को पॉज कर दो और फिर वहां से अपनी स्टोरी डेवलप करो, है ना। वो उस जगह पे पॉज करो, जैसे अगर आपने सोचा you really want that healthy and a prosperous life with amazing relationships, सबकी चाह होती है ये, है ना। तो आपने जैसे ही आप उस मूवी की तरफ आए हो, वहां पे जहां पे आपको लग रहा है दैट यू आर इन ब्लिस, टोटली पॉज नाउ, वहां पे उसको च्यू करो, ब्रू करो अपने दिमाग में, और अपने पांचों सेंसेस, आंख नाक कान, इमेजिनेशन में आपको पांचों सेंसेस अपने यूज करने हैं, उनको यूज करो आप। एंड देन ब्रू ऑन इट, उसमें ड्वेल करो, उसमें और डीप जाओ, बिकॉज दैट दैट पार्ट ऑफ द मोशन पिक्चर आपको अपनी जिंदगी में रियलिटी बनाना है। So just stop at it on that movie frame and see it happen in your life. अपने मन में आप देखो कि how are you looking? So healthy, slim, slender, full of energy, running, है ना, इस तरह से। फिर और क्या देख रहे हो, दैट आपके पास एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड फ्रीडम है। वाओ, लिव ऑन दैट, and that you are in total awe and wonder of life। जैसे रोंडा बर्न बोलती है, my life is breathtaking, awe inspiring and exciting। उसी पे पॉज कर लो आप। आपको फालतू की आगे पीछे जो उसके लिए पिक्चर है उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अभी आगे जाके ये हमको एक और एनालॉजी सिखाएंगे जिसमें ब्लैंक कैनवस पे बोलेंगे कि जाओ, आप जाओ अपनी मूवी की पिक्चर बनाओ, पेंटेड। जैसे द स्काईज पिंक मूवी थी प्रियंका चोपड़ा की, तो उसमें भी यही था ना, इट्स अ लाइफ। वो अपने बच्चे को बोलती है कि आपका आपका कैनवस है और आपके कलर्स है, आप उसमें स्क्रिप्ट बनाओ और आप कलर भरो फिर उसमें, है ना। आपको ब्लैंक कैनवस दिया हुआ है। सिमिलरली हम लोगों के पास भी हमको जो चाहिए, हमारा 100% अटेंशन उसकी तरफ फोकस्ड होना चाहिए। तो जैसे उन्होंने हमको समझाया है,
है ना? सो वो बोल रहे हैं कि वो ही रियलिटी आपकी बनने लग जाएगी सीक्वेंशियली, दैट वे, क्योंकि मूवी फ्रेम होती है, तो मूवी फ्रेम में से बोल रहे हैं उन ऑन वाली स्लाइड्स को हटा दो जो नहीं चाहिए आपको। क्यों उसके बारे में सोचना, क्यों उसके बारे में ड्वेल करना? बिकॉज ये हमको बहुत अच्छे से पता लग गया है दैट माई लाइफ इज वॉट आई फोकस ऑन। It is such a simple phenomena and a very simple process of creating the life that you desire. है ना? जब आप दोस्तों के साथ बैठे होते हो तो बातें करो कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, क्या करना है, ऐसे, है ना? उनके भी दिमाग में डालो, उनकी भी बातें अपने दिमाग में डालो, तो फिर वो बहुत मल्टीप्लाई होंगी, बिकॉज देन यूर टॉकिंग टू ईच अदर एंड टॉकिंग टू पीपल हु अंडरस्टैंड। बस हाँ, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ये एक्चुअली ट्रेड ऑफ है कि अगर आप बहुत मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो और आप ऐसे दोस्तों के साथ नहीं हो जो आपसे, हो सकता है कोई जेलस हो जाए जो सोचे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम सपनों की दुनिया में रहते हो, ऐसे लोगों से नहीं शेयर करने अपने सपने। उनको मत बताओ कि मेरा जिंदगी का ड्रीम ये है, आई आई वॉन्ट टू रीच हियर। वो बोलेंगे चुपचाप बैठ जाके किचन में खाना बना अभी। We don't want naysayers के साथ, be very careful about sharing your dreams. Never do that. Share it with people who understand you. है ना? अगर आपके पास, जैसे हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, you will be happy for me, है ना? I will be happy for you. I will be very happy and I'll say that I know you will do it. मैं और अपनी तरफ से दो राय और दे दूंगी आपको। आई विल गिव यू टू मोर थिंग्स दैट यू कैन डू टू चेज दैट ड्रीम और टू मेक इट हैपन। मैं बोलूंगी ये वाली एफर्मेशन करके देखो, वो करके देखो, ये स्टेप और ऐड कर लो आप अपने उसमें, राइट? बिकॉज यू हैव टू लिव इन दैट। सो पिक्चर आपको अपनी ही बनानी है, और उस रील में जो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको नहीं पसंद है, उनको रॉकेट में बिठा के ऊपर भेज दो स्पेस में। बेंटिनो मसारो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ जी। इफ If यू you वांट are if you are to slow down a movie or motion picture, a motion picture in motion, and that's what life is too. You could freeze a segment. What would that look like? What would one complete reality look like if you did not automatically shift into a new reality? It would look like everything was absolutely frozen. Hypothetically, you could keep your consciousness in one such frame. You could pause the process so that all you are aware of is one timeless total configuration of universal energy. Every time you change, which is constantly, your reality changes. It is a constant reflection of who you are, a constant reflection of the frequency of your consciousness, the state of your consciousness, and the point of view, your consciousness right now. You are in 100% complete different reality than 10 seconds ago. Really, even a nanosecond ago. या सो संजू विल रीड ओनली सो मच टुडे, बिकॉज अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है विच इज टाइम इज मैलिएबल, लर्न हाउ टू इन्फ्लुएंस इट थ्रू प्रेजेंस। बहुत ब्यूटिफुल टॉपिक है, आप लोग इंजॉय करोगे वो। थैंक यू संजू फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली। थैंक यू। बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सारे प्लीज अपना अपना नाम आप फिल किया कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो दिस इज बेंटिनो मसारो यही बता रहे हैं कि एक नैनो सेकंड पहले आपकी कोई रियलिटी थी, अब आप एक ही चीज में ब्रू कर रहे हो। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि अभी आप बैठो और आपकी वो पिक्चर चल रही है जिंदगी की, है ना? अब आप एक जगह फ्रीज कर दो, उसको पॉज कर दो एंड नॉट च्यू ऑन दैट। यू वांट दैट रियलिटी, उसको बड़ा करो, आपकी एक्चुअली नई पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी, है ना? दैट इज हाउ ब्यूटिफुल दिस होल प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज। सो दिस इज वॉट ही सेज दैट, like, enjoy life and
बी ऑल इन इनटू क्रिएशन. अगेन आई एम टेलिंग यू दैट वो इतना ज्यादा वर्ड, बी एक्साइटेड अबाउट व्हाट यू वांट, योर प्रिफर्ड रियलिटी जो बोलते हैं ना, बी एक्साइटेड about your preferred reality. We are all excited. It's not difficult to be excited about what you really want in your life. आपके जो burning desire है ना, या आपके जो भी विशेस हैं, लाइक आर्डेंट विशेस जिसको हम बोलते हैं, ऑब्वियसली इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू बी एक्साइटेड अबाउट. तो एक्साइटमेंट का एंगल डालना पड़ता है. फीलिंग फ्रीक्वेंसी हैप्पीनेस की एक्साइटमेंट से बहुत जल्दी आती है. आपकी फ्रीक्वेंसी जैसे आप सोच रहे हो, आई एम सो एक्साइटेड, आपकी पूरी बॉडी की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है उस एक सेकेंड में, है ना. इसीलिए वो हमको ये समझा रहे थे कि उसके एक्साइटमेंट में आप घुसो. व्हाट इज योर प्रिफर्ड रियलिटी, मेंटल मूवी एनालॉजी के हिसाब से, और सारी उन चीजों को कंट्रोल और डिलीट कर दो जो आपको नहीं चाहिए, एंड फ्रीज ऑन दैट मोमेंट दैट यू रियली वांट, एंड अपने दिमाग में उसको पेस्ट इट. दिस इज व्हाट ही सेड इन द यस्टरडे सेशन. पेस्ट इट ऑन टू यू till it becomes your current reality. Think about it, use your senses, एंड देन डू इट. सो ये यही बता रहे हैं हमको इस पूरे कंटेंट में, दैट पैरेलल रियलिटी में जैसे दिमाग में कुछ आता है, इसका मतलब है पैरेलल रियलिटी है. दिमाग को वो बोल रहे हैं पैरेलल रियलिटी है. दिमाग में कुछ आया है ना, दैट कितना अच्छा होगा ना, दैट आई स्टार्ट रिसीविंग 50 lakhs इन माई अकाउंट एवरी मंथ. कोई स्ट्रगल नहीं, कोई कुछ नहीं, देयर बी जॉय, देयर बी फ्रीडम, आई कैन इन्वेस्ट, आई कैन ट्रैवल, आई कैन बाय लग्जरीज, आई कैन एडुकेट अदर पीपल जिनको पैसे नहीं है पढ़ाई करने के. मैं अंडर प्रिविलेज, इतने सारे लोग हैं जिनके पास, जिनको बहुत मन है डॉक्टर बनने का लेकिन नहीं बन पाते हैं. लेकिन हर महीने मेरे पास अगर 50 लाख रुपए आएगा, मैं उनको डॉक्टर बना पाऊंगी. इजंट इट? उनके लिए, उनको जिस स्कूल में पढ़ना है, उनको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, मैं ये कर पाऊंगी, है ना. मैं जिस देश में मुझे जाना है, मैं वहां जा पाऊंगी. मैं इतना कुछ कर पाऊंगी, है ना. कितनी सेंस ऑफ फ्रीडम है, मजा आ जाएगा. आई कैन डू दिस. I love to stay in that, in luxurious resorts, hotels. कितना अच्छा लगेगा. I will be able to savor that joy of life. I will be able to do my course from one of the best universities, higher studies के लिए, क्योंकि मेरे पास सेंस ऑफ फ्रीडम, कितना अच्छा लगेगा ना. मैं तो वहीं फ्रीज हो गई, isn't it? And I'm just thinking, and मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस एक्साइटमेंट, उस जॉय, उस सेंस ऑफ फीलिंग, उससे इतना ज्यादा एज्ड होता जा रहा है दैट ये इमेज मेरे दिमाग में सील हो गई, है ना. गोज एंड गेट सील्ड टोटली. एंड देन ही सेज दैट, और बाकी सारी चीजों को आप हटा दो. एनएलपी टेक्निक के हिसाब से बता रहे हैं ना, मेंटल मूवी एनालॉजी. सो हमारी मेंटल मूवी हमारी है, तो हम उसको क्रिएट करेंगे और हम बहुत एक्साइटमेंट उसको डालेंगे और वहीं फ्रीज कर देंगे. और जो जो अनवांटेड चीज है उनको रॉकेट में बिठा देंगे कि वो जाए, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए, राइट. एंड देन वी विल चूज. चूज, चॉइस की एबिलिटी श्रीमद् भगवत गीता में लिखी हुई है. इंसान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग और नियामत is the ability to choose, तो आप चूज करो. हम उस राइट को एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे जो हमको एक एनिमल से इंसान बनाता है. हम अपने थॉट्स को चूज करते ही नहीं है. कभी कभी हम विक्टिम हो जाते हैं. वो कहते हैं ना, बाहर का एनवायरमेंट आपका मिरर इमेज है, आपने क्रिएट किया, आप उससे कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हो. साइंस तो इस बात को प्रूव ही नहीं करती है कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट से कुछ हुआ, किसी ने आपसे कैसे बोला, अगर आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए, तो आपकी एबिलिटी टू चूज कहाँ है उस टाइम. आप तो इंसान रहे ही नहीं, आप तो विक्टिम बन के घूम रहे हो, है ना. सो दैट इज वॉट वो बहुत अच्छे से हमको समझा रहे हैं और अभी भी समझाएंगे. और कल वाले सेशन में हम पढ़ेंगे कि टाइम मैलेबल होता है. ऐसा नहीं है इन चीजों के लिए टाइम लगता है. हमको किसी चीज के लिए टाइम नहीं. आप जो सोचोगे, आजकल हो रहा होगा ना आपके पास ऐसा, जो लोग भी कंसिस्टेंट हैं क्लासेस में, उनके साथ ऐसा हो रहा होगा कि आप सोचते हो और किसी न किसी रूप में वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है. आपने सोचा आज मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, पिज्जा आपके सामने प्रस्तुत हो गया. यू गेट इट समवेयर, पीपल विल टॉक अबाउट इट. व्हेन यू गो यू विल सी दैट देयर इज अ पिज्जा, समबडी विल कम टू योर हाउस टेकिंग ब्रिंगिंग अ पिज्जा फॉर यू. आपने सोचा कि आई वांट टू ईट दिस एंड इट कम्स टू योर हाउस.
और आप जहाँ पे गए हो वही चीज़ आपको ऑर्डर हुआ, जो आपको चाहिए थी। सो अपने आप ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, है ना। हु इज डूइंग ऑल दैट? हमारी सबकॉन्शियस माइंड एक्शन में है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, वो कनेक्टेड है परमात्मा के साथ, सुपर कॉन्शियसनेस से। सो हमारी आत्मा पूरे टाइम परमात्मा से कनेक्टेड होती है, और परमात्मा, दैट सुपर कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, द यूनिवर्सल फोर्स, यूनिवर्सल एनर्जी, दैट इज देयर ऑलवेज एवरीवेयर। हमको उसमें से पाइप लगा के अपने काम की चीज खींचनी नहीं आती है ना। तो उसमें से रेजर्वॉयर है वो, उसमें से पाइप लगा के खींचो, इमेजिनेशन से फीलिंग डालनी पड़ेगी ना। जैसे ये बताते हैं दैट बी ऑल इन का मतलब ही होता है फील इट, सेंस इट, टेस्ट इट, पेस्ट इट। सब यही बोलते हैं ना, टेस्ट इट, पेस्ट इट, ये सब भी, है ना। ऐसे इन्होंने ही तो हमको दिए हैं ये वाले सारे शब्द, बेंटिनो मैसारो जी ने। So, this is what exercise your ability to choose and be strict with yourself. Be strict with yourself. नहीं सोचना मुझे वो सारी चीजें जो नहीं चाहिए। करंट रियलिटी क्या है आपकी, इससे क्या लेना देना। करंट को चेंज करना ही तो है हमको। एबिलिटी टू चूज एक्सरसाइज करेंगे तो करंट रियलिटी आज है कि तबीयत नहीं ठीक है, लाइफ में ये प्रॉब्लम है, फैमिली में ये इशू चल रहा है, पैसे की दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप में बैंड बजा हुआ है। तो जो भी है आपका, उसे हमको कोई लेना देना नहीं है। प्रिफर्ड रियलिटी क्या है, इस पूरी किताब में आप बस उसी पे वर्क करोगे, और वो बार 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 बार, है ना। कभी कभी डिप होते हो, आप ये हमारे सेशन दोबारा सुन लिया करो, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी टीचिंग्स हैं, ये दुनिया के पास कैसे जाएंगी, बिकॉज ये ऑथर नहीं है, ये यूनिवर्सिटी चलाते हैं ट्रिनिटी अपनी, तो ये ऑथर नहीं है, ये मेरी तरह एडुकेटर है। सो किताब नहीं लिखते वो, तो मीटिंग का मिल गया है तो हमको, मतलब हम बहुत ब्लेस्ड है, किसी के पास नहीं इंडिया में ये वाली किताब अब है। इनफैक्ट इंडिया में सबसे पहले हम लेके आए थे सुपर एक्सलरेटेड लिविंग, मैजिक्स एंड मिरेकल्स ग्रुप, ये नहीं थी यहाँ पे। Nobody had it. Still, people don't have it. Ever seen? Have you ever heard or thought about Bentino Massaro? You've never heard about it. He's not an author. He doesn't write. अपनी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, ट्रिफिनिटी, आई एम सो सॉरी, नोमेनक्लेचर, ट्रिफिनिटी, है ना, ट्रिफिनिटी यूनिवर्सिटी चलाते हैं वो। और ऐसे रिट्रीट करके लाइव लोगों को वो करते हैं डेफिनेटली। और इनके सारे, मतलब जो लाइव करते हैं यूट्यूब पे भी वही है। वो बहुत कम ऐसे यूट्यूब पे बैठ के बात करते हैं, उनकी मीटिंग के एक्सर्प्ट्स आते हैं उसमें से, उसके जो कटआउट्स होते हैं वो उसमें आएंगे। सो दैट इज व्हाट ही डज। और उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत सॉर्ट कर रखा है, क्योंकि ट्रैवलर है वो, मतलब बहुत ट्रैवल करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, इधर उधर इधर, कभी थाईलैंड, कभी इंडोनेशिया में, कभी कहीं रिट्रीट्स इनके होते हैं। दैट्स हु हिज बिन। बट ये हमको बहुत स्ट्रांगली सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कम उम्र में, 16 साल में एनलाइटनमेंट, है ना, और 25 साल में वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमको अपनी उम्र में भी समझ में आने में, मतलब वैसा है। सो टोटली ही इज अ गॉड, लाइक तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझा है कि आपकी आत्मा ही परमात्मा होती है, परमात्मा से मिली हुई होती है, उसको जोड़ के रखो, वो कनेक्शन मत छोड़ो। और वो तब जब चूज करोगे आप कि आपको क्या चाहिए, और व्हाट इज नहीं सोचोगे, एंड व्हाट यू वांट के बारे में ज्यादा सोचोगे, है ना। तो वो पूरी मूवी की एनालॉजी चेंज हो जाती है, एंड देन ही टॉक्स अबाउट इट। सो दिस इज ऑल वी हैव इन अ सेशन टुडे।